آج ہمارے سامنے ایک بہت ہی دلچسپ موضوع ہے جس پر ہم گہرائی میں بات کریں گے۔ موضوع ہے لطیفہ قلب۔ اب یہ صرف کوئی آپ سمجھیں پرانی صوفیانہ اصطلاح نہیں ہے۔ جو دستاویز ہمارے پاس ہیں وہ اس تصور کو قدیم روحانی روایات سے اٹھا کر سیدھا جدید سائنس لیب میں لے آتی ہیں۔ ہم بات کریں گے نیورو کارڈیولوجی کی، یعنی دل کے اپنے دماغ کی، اور یہاں تک کہ کوانٹم فزکس کے ان تصورات کی جن کا مطلب اکثر روحانی حلقوں میں ذکر ہوتا ہے۔ تو آج ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اس پورے معاملے میں استعارہ کیا ہے، عقیدہ کہاں سے شروع ہوتا ہے، اور ٹھوس سائنسی ثبوت کیا کہتا ہے۔ یہ ایک قسم کا سفر ہے جو صوفیہ کے تجربات سے شروع ہو کر سائنسدانوں کی دریافتوں تک جائے گا۔ اور یہ سفر اس لیے دلچسپ ہے کیونکہ ہم علم کے دو بالکل مختلف نظاموں کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہیں صوفیانہ تجربات جو مکمل طور پر داخلی ہیں، ذاتی ہیں، اور دوسری طرف ہیں سائنسی تحقیقات جو خارجی ہونے کا، قابل پیمائش ہونے کا دعویٰ کرتی ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا اصل چیلنج یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں نظام ایک ہی حقیقت کی بات کر رہے ہیں، بس زبان مختلف ہے، یا پھر ایک نظام کی زبان کو دوسرے پر لاگو کرنا ایک بنیادی غلطی ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں کہاں ملتے ہیں اور کہاں ان کے راستے بالکل الگ ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کو ذرا آسان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد پر آتے ہیں۔ صوفی روایت میں جب لطیفہ قلب کی بات ہوتی ہے تو کیا وہ ہمارے سینے میں دھڑکنے والے گوشت لوتھڑے کی بات کر رہے ہوتے ہیں؟ اور اسے لطیف یعنی سٹل کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ لفظ تھوڑا مبہم سا ہے۔ بہت اچھا سوال ہے۔ نہیں، وہ صرف جسمانی دل کی بات نہیں کر رہے۔ صوفیانہ روایت میں قلب صرف خون پمپ کرنے والا عضو نہیں، بلکہ ادراک کا، فہم کا، شعور کا ایک مرکز ہے۔ اور یہ تصور نیا بھی نہیں، قرآن میں بھی دل کا لفظ سوچنے، سمجھنے اور بصیرت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور لطیف اسے اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مادی نہیں ہے، یہ ایک باطنی، ایک تجرباتی حقیقت ہے۔ آپ اسے محسوس کر سکتی ہیں، اس کی طرف توجہ کر سکتی ہیں، لیکن اسے کسی آلے سے ناپ نہیں سکتی۔ بالکل، یہی وہ پہلا اور سب سے اہم نقطہ ہے جو اس تصور کو عقیدے اور ذاتی تجربے کے دائرے میں رکھتا ہے، نہ کہ مادی ثبوت کے۔ یعنی ایک طرف ہمارا فزیکل دل ہے جس کی ECG ہو سکتی ہے، اور دوسری طرف یہ قلب ہے جو ایک تجرباتی مرکز ہے۔ لیکن دستاویز میں تو لطائف ستہ یعنی 6 لطائف کا ایک پورا نظام کا ذکر ہے۔ یہ کیا چیز ہے، اور اس میں لطیفہ قلب کو پہلا دروازہ کیوں کہا گیا ہے؟ اسے آپ شعور کے ایک نقشے کی طرح سمجھیں، ایک میپ آف کانشسنس۔ لطائف ستہ اصل میں انسان کے اندر شعور کے 6 مراکز یا پہلو ہیں، جیسے قلب جذبات اور احساسات کا مرکز ہے، روح روحانی بصیرت کا، سر الہامی علم کا، اور اسی طرح باقی بھی۔ یہ ایک پورا داخلی سفر ہے، اور اس سفر کا آغاز ہمیشہ قلب سے ہوتا ہے۔ صوفیہ کے مطابق حقیقت کا پہلا اور سب سے گہرا ادراک خالص منطق سے نہیں بلکہ احساس اور وجدان سے ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی انٹیوشن سے؟ جی، انٹیوشن سے۔ اسی لیے قلب کو بیدار کرنا اپنی داخلی دنیا سے جڑنے کا پہلا اور سب سے اہم قدم مانا جاتا ہے۔ اور اسی سے جڑی ایک اور بات جو اکثر سننے میں آتی ہے وہ ہے دل کا زنگ آلودہ ہو جانا۔ یہ سننے میں بہت شاعرانہ لگتا ہے، لیکن اس کا عملی مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا کوئی تعلق ہماری نفسیاتی کنڈیشننگ سے ہے؟ بالکل، یہ صرف شاعری نہیں، ایک بہت گہری نفسیاتی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ دل کا زنگ اصل میں ہمارے تعصبات، ہمارے بائسز، ہمارے خوف، ہماری پہلے سے قائم شدہ رائے اور عقائد کا استعارہ ہے۔ یہ وہ ذہنی فلٹرز ہیں جو ہمیں چیزوں کو ویسا دیکھنے سے روکتے ہیں جیسی وہ ہیں۔ اس زنگ کو ایسے سمجھیں جیسے آپ نے دھوپ کا چشمہ پہنا ہو جس کے شیشے گندے ہوں۔ دنیا وہی ہے لیکن آپ کو صاف نظر نہیں آ رہی۔ تزکیہ قلب یعنی دل کی صفائی دراصل اس چشمے کو صاف کرنے کا عمل ہے تاکہ آپ حقیقت کو بغیر کسی فلٹر کے دیکھ سکیں۔ واہ، یہ گندے چشمے والی مثال بہترین ہے، لیکن یہاں پر بات بہت دلچسپ ہو جاتی ہے کیونکہ اب ایسا لگتا ہے کہ سائنس بھی کچھ ایسی ہی بات کر رہی ہے۔ دستاویزات کے مطابق نیورو کارڈیولوجی دل کو صرف ایک پمپ نہیں سمجھتی۔ کیا یہ سچ ہے کہ دل کا اپنا دماغ ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل نئی بات ہے۔ مجھے ہمیشہ لگتا تھا کہ دل بس دماغ کے حکم مانتا ہے۔ یہ واقعی ایک انقلابی دریافت ہے۔
दिल का अपना एक बहुत पेचीदा आसाबी निज़ाम है जिसमें तकरीबन 40,000 न्यूरॉन्स हैं। इसे न्यूरोकार्डियोलॉजी की ज़बान में इंट्रिंसिक कार्डियक नर्वस सिस्टम कहते हैं और आम फॉर्म ज़बान में द लिटिल ब्रेन इन द हार्ट यानी दिल का छोटा दिमाग भी कहा जाता है। यह निज़ाम सिर्फ दिल की धड़कन को कंट्रोल नहीं करता बल्कि इसकी अपनी याददाश्त और सीखने की सलाहियत भी है। और सबसे हैरानकुन बात यह है कि दिल दिमाग को नीचे से ऊपर की तरफ इतने ज़्यादा सिग्नल्स भेजता है कि यह हमारी सोच, हमारे जज्बात और यहाँ तक कि हमारी फैसला साजी पर बराह रास्त असरअंदाज हो सकता है। एक मिनट, अगर दिल के सिग्नल्स दिमाग को मुतासिर कर सकते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि जब लोग कहते हैं कि मुझे अच्छी वाइब्स आ रही हैं तो वो असल में किसी काबिले पैमाइश चीज़ की बात कर रहे होते हैं, या ये अब भी इस्तिआरा है? ये बहुत अहम सवाल है और यही हमें इस्तिआरे और सबूत में फ़र्क करना है। साइंस ये ज़रूर कहती है कि दिल का एक अपना बरकी मकनातीसी मैदान यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो कि जिस्म में सबसे ताकतवर है, दिमाग के मैदान से भी कई गुना ज़्यादा। और ये मैदान हमारे इर्द गिर्द के माहौल और दूसरे लोगों के मैदानों से ताअम्मुल भी करता है, इंटरैक्ट करता है। लेकिन इस ताअम्मुल को अच्छी वाइब्स या बुरी वाइब्स का नाम देना एक तशरीह है, एक इंटरप्रिटेशन है। साइंस एक काबिले पैमाइश मजहर की बात कर रही है जबकि वाइब्स का तसव्वुर एक ज़ाती एहसास है। तो साइंस एक इम्कान की तरफ इशारा कर रही है लेकिन इसे साबित नहीं कर रही। यहाँ साइंस की सरहद ख़त्म होती है और तजुर्बे की शुरू होती है। ये फ़र्क वाकई बहुत अहम है कि साइंस कहाँ रुकती है और तजुर्बा कहाँ से शुरू होता है। लेकिन दस्तावेज में एक और भी बड़ा दावा है जो साइंस के एक बिल्कुल मुख्तलिफ शोबे यानी क्वांटम फिजिक्स को इस गुफ्तगू में ले आता है। ये तो एक बहुत बड़ी छलांग है। सूफीज़म और न्यूरोकार्डियोलॉजी का ताल्लुक तो फिर भी समझ आता है, लेकिन क्वांटम फिजिक्स का यहाँ के ताल्लुक बनता है। ये एक ऐसी छलांग है जो अक्सर लोग लगाते हैं और यहीं सबसे ज्यादा गलतफहमियां पैदा होती हैं। रूहानी हलकों में क्वांटम फिजिक्स के ऑब्जर्वर इफेक्ट का बहुत हवाला दिया जाता है, यानी ये नजरिया कि जब कोई मुशाहिदा करने वाला, कोई ऑब्जर्वर किसी जर्रे को, पार्टिकल को देखता है तो वो जर्रा अपनी हालत बदल लेता है। इसको बुनियाद बनाकर यह दावा किया जाता है कि हमारा शऊर, हमारी कॉन्शियसनेस हकीकत को तख्लीक करती है। हाँ, ये आइडिया तो बहुत ताकतवर है। ये किताबों से लेकर सेल्फ हेल्प सेमिनार्स तक हर जगह इस्तेमाल होता है। ये सुनने में ऐसा लगता है कि ये सच होना चाहिए। तो फिर साइंस के मुताबिक इसमें गलती कहाँ है? क्या ये पैमाने यानी स्केल का मसला है, ये मुशाहिदे की तारीफ का? आपने बिल्कुल सही जगह उंगली रखी है। मसला मुशाहिदे की तारीफ का है। क्वांटम फिजिक्स में मुशाहिदा करने का मतलब आंखों से देखना या सोचना नहीं है। इसका मतलब है किसी आले के जरिए उस जर्रे के साथ तामुल करना, उसकी पैमाइश करना। ये एक फिजिकल अमल है। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मालूम करने के लिए उस पर फोटोन मारते हैं तो आप खुद उसकी हालत बदल देते हैं। यहाँ ऑब्जर्वर कोई बाशऊर इंसान नहीं बल्कि पैमाइश का अमल खुद है। इस साइंसी अमल को ये कहना कि मेरी सोच हकीकत बदल सकती है, साइंस और रूहानियत के तसव्वुरात को गलत तरीके से मिलाना है। दस्तावेज भी यही वाज़े करती है कि ये दोनों शोबों के साथ नाइंसाफ़ी है। तो फिर क्या इस तसव्वुर को इस्तिआरे के तौर पर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, और एक इस्तिआरे के तौर पर यह बहुत ताकतवर है। जैसे नफ्सियात में कहा जाता है कि जिस चीज़ पर आप तवज्जो देते हैं वो आपके लिए बड़ी हो जाती है। आपका फोकस आपकी हकीकत को शक्ल देता है। ये एक नफ्सियाती सच्चाई है, लेकिन इसे क्वांटम फिजिक्स का सबूत कहना एक साइंसी दावा है जिसकी कोई बुनियाद नहीं। हमें ये समझना होगा कि कब जुबान अलामती है और कब हकीकी। ये वजाहत बहुत ज़रूरी थी। चलें अब इस सब को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लाते हैं। इस सारी थ्योरी का अमली फ़ायदा क्या है? दस्तावेज में जिक्र और मुराकबा जैसी मशकों के आसाबी निज़ाम पर असरात की बात की गई है। इसको एक मिसाल से समझते हैं। फ़र्ज़ करें किसी को अपने बॉस की तरफ से एक बहुत गुस्से वाली ईमेल आती है। इस लम्हे में एक दिमागी रद्द-ए-अमल और एक कल्बी रद्द-ए-अमल में क्या फ़र्क होगा? बेहतरीन मिसाल है, जब वो ईमेल आती है तो पहला फौरी और खुदकार रद्द-ए-अमल दिमाग के जज्बाती हिस्से यानी अमिगडाला से आएगा। ये फाइट और फ्लाइट वाला रद्द-ए-अमल है। लड़ो या भागो। दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, सांस अकड़ जाएगी और इंसान फौरन गुस्से या दिफाई अंदाज में जवाब टाइप करना शुरू कर देगा। ये एक बेसाख्ता रद्द-ए-अमल है, एक रिएक्शन। ठीक है, ये तो हम सब के साथ होता है।
तो कल्बी रद्द अमल या हार्ट कोहेरेंट रिस्पॉन्स कैसा होगा? वो शख्स जो अपने दिल से जुड़ने की मशक करता है वो इस फौरी रद्द अमल के बहाव में नहीं बहेगा। वो एक लम्हे के लिए रुकेगा, शायद आंखें बंद करे और अपनी तवज्जो अपने सांस और दिल की धड़कन पर लाएगा। साइंस बताती है कि यह अमल हमारे आसाबी निज़ाम के रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी पुरसुकून होने वाले हिस्से को फ़आल करता है। इससे दिल की धड़कन में एक हम आहंगी पैदा होती है जिसे हार्ट रेट वेरिएबिलिटी या HRV कहते हैं। इस हालत में इंसान जज्बाती तूफान से निकलकर एक पुरसुकून जगह पर आ जाता है। अब वो जो जवाब लिखेगा वो गुस्से या खौफ से नहीं बल्कि समझदारी और वजाहत से लिखा जाएगा। ये एक सोचा समझा जवाब है, एक रिस्पॉन्स, रद्द अमल नहीं बल्कि जवाब। और सूफियाना नुक्ता नज़र से शायद इसी को कल्ब की बेदारी का अमली नतीजा कहा जाएगा कि आप अपने जज्बात के गुलाम नहीं बल्कि उनके मुशाहिदा करने वाले बन जाते हैं। बिल्कुल। जब दिल का जंग उतरता है तो इंसान को अपने जज्बात पर काबू हासिल होता है और इसका असर सिर्फ ईमेल के जवाब तक महदूद नहीं रहता। दस्तावेज के मुताबिक इस तब्दीली का असर इंसान के ज़ाती ताल्लुकात, उसकी बर्दाश्त, उसकी हमदर्दी और इसके पूरे समाजी रवैये पर पड़ता है। वो लोगों को कम जज करता है और ज़्यादा समझने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी तो हो सकता है, जैसा कि दस्तावेज में भी इशारा है। दिल पर मबनी वुजदान यानी इंट्यूशन और मंतिकी सोच यानी लॉजिक में तवाजुन कैसे कायम किया जाए? ऐसा ना हो कि इंसान हर चीज को दिल की आवाज समझकर गैर मंतिकी और खतरनाक फैसले करने लगे। ये एक बहुत अहम अमली सवाल है और इसका जवाब तवाजुन में है। सूफियाना तरबियत में मंतिक को कभी भी रद्द नहीं किया जाता। मकसद अक्ल को ख़त्म करना नहीं बल्कि उसे उसके सही मकाम पर रखना है। विजदान आपको दिशा यानी डायरेक्शन दे सकता है, एक अंदरूनी एहसास दे सकता है कि ये रास्ता सही है, लेकिन इस रास्ते पर चलने के लिए, मंसूबा बंदी करने के लिए और अमली कदम उठाने के लिए मंतिक और अक्ल की ज़रूरत होती है। बेहतरीन फैसले तब होते हैं जब दिल और दिमाग, विजदान और मंतिक हमाहंग हों, जब एक की बात दूसरे को काट ना रही हो बल्कि उसकी तायीद कर रही हो। के तौर पर जो शऊर का एक दाखिली मरकज है, फिर जदीद न्यूरो कार्डियोलॉजी की रोशनी में जहां दिल एक छोटा दिमाग है जो हमारी सोच और जज्बात पर असरअंदाज होता है, और आखिर में क्वांटम फिजिक्स के साथ उसके ताल्लुक को समझा जो कि साइंसी सबूत से ज़्यादा एक ताकतवर इस्तिआरा है। और सबसे अहम बात जो हमने सीखी वो ये है कि अकीदे, साइंसी शवाहिद और इस्तिआरे में फ़र्क करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल। और मैं इस गुफ्तगू को एक आखिरी सोच के साथ ख़त्म करना चाहूँगा जो सुनने वालों के लिए है। दस्तावेज में एक बहुत गहरा सवाल उठाया गया है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तकद्दुस का तजुर्बा करना या हर चीज़ में गहरा मतलब देखना, क्या ये शऊर की तब्दीली का नतीजा है या सिर्फ हमारी तशरीह का, हमारी इंटरप्रिटेशन का? इस पर गौर कीजिएगा। क्या ये पूरा रूहानी सफ़र एक नई पोशीदा हकीकत को दरियाफ्त करने के बारे में है या फिर इसी दुनिया और इसी हकीकत को देखने का अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल देने के बारे में है?